Well, today is Monday, June आज 22nd, सोमवार and I 29 am जून है happy और मुझे and बहुत privileged खुशी है to कि मैं welcome अपने my प्रिय dear friend दोस्त और and भाई my लैरी brother colleague, जॉनसन का स्वागत कर रहा Larry हूँ। Johnson. उनका Larry सीआईए का अनुभव is है और CIA वो आज president हमारी to मदद help us करेंगे दुनिया में analyze क्या what's चल going on रहा in the है world. इसे समझने में। And जैसा as कि you आप know, जानते हैं, we हमारा have अस्तित्व come बहुत to हाल ही में consensus शुरू हुआ है, very लेकिन हम recently, आप and we are सबके very समर्थन grateful के to you लिए for दिल supporting से us. आभारी We हैं। have हमें received दुनिया भर से very आप सबका significant बहुत support from महत्वपूर्ण all of सहयोग you all मिला over है the world, और बहुत and जल्द, soon we will शायद अगले be हफ्ते in तक, हम 12 all प्रमुख भाषाओं में 12 उपलब्ध होंगे। major तब languages, हमारी आवाज़ maybe हर as जगह of सुनी a जाएगी। week from now. So our voices will be heard everywhere, and our the हम reason we इसलिए came into अस्तित्व में आए existence is हैं that क्योंकि हमें वो we खास मौका have मिला है कि been हम आपको वो privileged खबरें दे सकें to जो be असल में खबरों को provided दिशा with the देती हैं। news that और हम drives the सिर्फ news, खबरें ही and नहीं we लाते, bring it to you. बल्कि ऐसे विशेषज्ञ भी And लाते not हैं only जो that, अपने we क्षेत्र के bring सच्चे to you जानकार हैं, जैसे लैरी experts जॉनसन that और are true पेपे experts, एस्कोबार। such as Larry इसके अलावा Johnson and एक Pepe अलग Escobar, दृष्टिकोण से विजय also in प्रसाद a जैसे different लोग भी हमारे category, साथ हैं। different और perspective, आगे भी कई ऐसे Pepe लोग Prasad, जुड़ेंगे and there are जिनमें others स्वतंत्र रूप से who खबरों को will be समझने joining और us उनका who विश्लेषण करने की have the क्षमता है, चाहे वो independent खबरें चल ability रही to हों या वो जो understand हम and आपको दे रहे हैं। analyze the तो news इसी परिचय that के is साथ happening अब मैं and बात the सौंपता हूँ news लैरी that we को। provide to you. लैरी, आगे So with बढ़िए। that introduction, I give it to you, Larry. Go ahead. Well, thanks. I'll call you Dr. Z. धन्यवाद। Makes you sound like a character मैं आपको out of डॉक्टर a जी James कहूँगा। Bond film. सुनने में ऐसा लगता है जैसे आप किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म के किरदार हों। Happy to be Dr. मुझे डॉसी कहने में कोई You दिक्कत know, नहीं। we've देखिए, seen over the इस हफ्ते weekend के अंत में the हमने first पहली बार open देखा कि violation of संयुक्त the राज्य MOU by अमेरिका the ने United उस समझौता States. ज्ञापन का खुला The way उल्लंघन it's किया being है। played in the West is if पश्चिमी मीडिया a जिस तरह से Iran इसे was the दिखा रहा है, violator, but वो that's ईरान को actually उल्लंघनकर्ता के not रूप the में case. पेश करने की कोशिश है, Iran, लेकिन हकीकत बिल्कुल वैसी is नहीं है। in the MOU उस समझौते में granted ईरान को authority होर्मुज जलदभूमध्य से for जहाज़ों के terms of the सुरक्षित safe आवागमन passage का of निर्धारण ships out करने of the का Strait of अधिकार दिया Hormuz. गया था। That's ये उस paragraph दस्तावेज 5 के पैराग्राफ document. 5 में साफ लिखा है। It's quite इसमें explicit. किसी तरह की कोई There's भ्रम no- की गुंजाइश there should नहीं be होनी no- चाहिए। No confusion about it whatsoever. That when you look at the when you look at the details that are contained, it वारिद doesn't आप say उसमें that, दिए गए विवरणों ध्यान से देखें Iran, तो along कान with बेजीद चूती Oman की कि or ईरान, the other Gulf ओमान या countries दूसरे खाड़ी will देशों के support साथ the मिलकर agreement. कोई समझौता It's just- करेगा। it's very, very plain बहुत साफ तौर पर that कहा गया है it कि is उस Iran एमओयू के तहत ये alone अधिकार सिर्फ that ईरान has के that पास है। authority under that MOU. यहाँ तक कि संयुक्त Not राज्य the अमेरिका United भी States इस फैसले में asserts दखल the देने right का to कोई interfere अधिकार in नहीं that जताता। decision. ईरान का The right फैसला decision उन was प्रोटोकॉल्स के made आधार based पर upon लिया the गया है Persian जिन्हें Gulf लगभग Strait 4 हफ्ते Authority पहले पर्शियन गल्फ protocols स्ट्रेट that were अथॉरिटी issued about ने 4 जारी weeks किया ago. था। And in it उनमें was यह तय stipulated किया गया that था there कि were अगर कोई देश restrictions. अपनी जहाज़ों को उस Countries are supposed जलदभूमध्य to से follow the गुजारना warning चाहता to है bring ships तो उसे कौन सी through the प्रक्रियाएं strait. अपनानी होंगी। Uh, पिछले last शुक्रवार यूके Friday, मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक जहाज को UK चुपके से Maritime वहां से Trade गुजारने की Organization, कोशिश की। tried उन्होंने to एवर लवली steer नाम के one जहाज through, को प्रोत्साहित किया कि encourage वो the उस ship by the रास्ते से Ever जाए। Lovely, to ईरान ने उस पर go through ड्रोन the से strait. हमला किया। Um, Iran hit it with a drone, and in response to that, the United States और उसके decided जवाब it was में going to संयुक्त राज्य अमेरिका ने तय किया attack Iran. कि वो Now, ईरान again, पर हमला करेगा। there is not a अब देखिए, one पूरे समझौता prohibition ज्ञापन in में एक भी ऐसी entire शर्त नहीं है MOU जो ईरान को रोकती हो against Iran कि वो उन acting जहाज़ों के against खिलाफ ships कार्रवाई ना करे violating जो उसके what हिसाब से Iran उसकी considers समुद्री its सीमा का territorial उल्लंघन waters. कर रहे हैं। And there's nothing in और this उसमें कहीं भी ये नहीं that लिखा the है United कि States has अमेरिका any को right किसी to तरह का enforce. प्रवर्तन करने का अधिकार है। The only thing in असल it में that उस the समझौते United में States सिर्फ एक is बात that the साफ तौर United पर States कही is गई gonna है stop कि अमेरिका attacking ईरान पर हमले Iran बंद and करेगा stop और ईरान को threats धमकाना भी बंद against करेगा। Iran. Well, लेकिन US शुक्रवार को and अमेरिका ने इन दोनों Friday, बातों का उल्लंघन किया। uh, उसके in- जवाब में in ईरान ने response जो to that, किया Iran उसे मैं प्रतीकात्मक carried out जवाब what I call कहूंगा। symbolic retaliation. वो सैन्य Maybe दृष्टि से it's not बहुत बड़ा significant कदम नहीं था militarily, और बाद में ये भी साफ हुआ but it कि turns अमेरिका out के सैन्य that हमले the भी US ज़्यादा US प्रतीकात्मक थे। military attacks also असल में ईरान को were कोई गंभीर symbolic, नुकसान पहुंचाने actually वाले नहीं थे। substantive in terms of really inflicting damage on Iran. This followed on Saturday by two more ships trying to transport शनिवार को इसके बाद strait. दो और जहाज़ों ने ओमान के तट के पास उस And we had जलदमरुमद से Iran गुजरने की intervening. कोशिश की One of the ships was accompanied और फिर by, से uh, ईरान ने दखल दिया। US उन Air जहाज़ों में Force. से एक के I don't साथ know आप exactly जानते how हैं many escort एक अमेरिकी ships हवाई are एस्कॉर्ट था। knots per मुझे hour ठीक नहीं पता कि on the
12 नॉट की रफ्तार से चल रहे जहाज को 300 नॉट की रफ्तार से उड़ रहे विमान कैसे एस्कॉर्ट कर सकते हैं? But anyway,
लेकिन खैर वो एक अलग मुद्दा है। खैर ईरान ने उन जहाज़ों पर गोलीबारी की और उसी दौरान उसने अमेरिकी नौसेना के एयरबेस पर हमला किया, जो बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर एक और हवाई हमला किया और जवाब में ईरान ने फिर से भारी बमबारी की, मिसाइल और ड्रोन हमले किए कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर और फिर बहरीन के अल आइसा एयरबेस पर। Nu maar even more you know why than a hint. So at that point you say what's going to happen next? तो उस वक्त सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा और हालात को और बढ़ाएगा? अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उसने पीछे हटने का फैसला किया। मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ वजहें हैं। पहली बात, अमेरिका इस क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की प्रक्रिया में है। अब फारस की खाड़ी के लिए जो नई सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है, उसका एक मुख्य उद्देश्य है अमेरिकी सैन्य बलों और उनके ठिकानों को खाड़ी देशों से हटाना। हमें, और मैं कहूँगा कि भरोसेमंद तौर पर हमें ये जानकारी मिली है डॉक्टर जेड के काम की बदौलत कि सऊदी अरब और कतर दोनों ने अमेरिका को संकेत दिया है कि वे अगले 9 से 10 महीनों के भीतर अपने किसी भी सैन्य अड्डे को खाली कर दें जहां वे इस समय मौजूद हैं या जहां उनका स्टाफ तैनात है। अब कतर में जो अल उदैद बेस है, उसकी खास बात यह है कि वहां की मुख्य गतिविधि थी कंबाइंड ऑपरेशन सेंटर यानी CAOC। युद्ध शुरू होने के बाद 28 फरवरी को CAOC पर हमला हुआ था और उसके बाद उसे साउथ कैरोलिना के शॉ एयरफोर्स बेस में स्थानांतरित कर दिया गया। तो व्यावहारिक रूप से तो अमेरिका ने अल उदैद से अपनी मौजूदगी लगभग हटा ली है। वहां तैनात कर्मियों की संख्या भी काफी घटा दी गई है। मेरे हिसाब से अब वहां जो बल मौजूद है वो बस प्रतीकात्मक है, कोई बड़ा या प्रभावशाली बल नहीं। यही बात सऊदी अरब में अमेरिकी मौजूदगी के बारे में भी कही जा सकती है। तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस टकराव की पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं कि भले ही अमेरिका ने ये औपचारिक रूप से नहीं कहा कि वह अपनी 5th फ्लीट का मुख्यालय बंद कर रहा है या अल उदैद बेस को बंद कर रहा है या सऊदी अरब के प्रिंस सऊद एयर बेस से पूरी तरह हट रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने अपनी सेनाएं वहां से निकाल ली हैं। इसका मतलब है कि अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां खाड़ी देशों को यह सोचना होगा कि आगे वे अमेरिका की सुरक्षा छतरी के बिना कैसे आगे बढ़ेंगे। पिछले 4 महीनों में उन्होंने ये साफ देखा है कि अमेरिका की ये छतरी अब कोई वास्तविक सुरक्षा नहीं दे रही। असल में ये तो एक चुंबक बन गया है, मिसाइलों और ड्रोन के लिए चुंबक। बिल्कुल उल्टा असर हो रहा है। हाँ, सऊदी और कतरी अब कह रहे हैं हमें ये अब पसंद नहीं आ रहा। तो फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका ने बातचीत की पहल की है। वो इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे आप जानते हैं ईरान ने हमें फ़ोन किया और कहा कि दोहा में बात करना चाहते हैं तो हम जाकर सुन लेंगे, लेकिन असल में मिलने की इच्छा अमेरिका की है। वो इस MOU के नाटक को या कहिए दिखावे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के अंदर अब इस समझौते से पीछे हटने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। खैर, अगले कुछ दिनों में देखते हैं अच्छा, क्या मैं उस कैसे नंबर पता है लैरी? ये तुम कुछ और कहना ना था? नहीं, बोलिए आगे। धन्यवाद लैरी, आपके परिचय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात मैंने पहले नहीं कही थी जब मैंने शुरुआत की थी, लेकिन अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, क्योंकि इसी तरह YouTube के एल्गोरिदम हमें पहचानते हैं और ये सामग्री ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब जो वैश्विक दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खबरों की एक परत ऐसी होती है
जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तो होती है, लेकिन दुर्भाग्य से कॉरपोरेट मीडिया उसे अपने तरीके से रंग देता है। इसलिए आप असली खबर नहीं देखते, बल्कि उसकी एक बदली हुई झलक देखते हैं जो पारंपरिक मीडिया में दिखाई जाती है। और फिर बात आती है उस विश्लेषण की जो ऐसे लोग करते हैं जिन्हें हालात की बेहतर समझ होती है। अब यहाँ हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की क्षमता है जो गोपनीय है, जिस पर हमें भरोसा किया गया है। ये वही जानकारी है जिसकी हम पुष्टि करते हैं, जिस पर हम खड़े हैं और जो बार बार सही साबित हुई है। हम न सिर्फ उस जानकारी को जुटाते हैं, बल्कि उसे ऐसे विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं जैसे लैरी, जैसे पेपे, जिनके पास इस तरह के मामलों का गहरा अनुभव है। वे उस जानकारी का विश्लेषण करते हैं और फिर उसे आपके सामने रखते हैं। तो जब तक वो बात आप तक पहुंचती है, वो कई स्तरों से गुजर चुकी होती है, और तब आप दुनिया में जो सचमुच हो रहा है वही सुनते हैं। जहां तक मुझे पता है, और मैंने ये बात लैरी से यहाँ आने से पहले भी कही थी, ईरान पर बाहर निकलने का जबरदस्त दबाव रहा है। दरअसल जब पहली बार व्हाइट हाउस ने हमले का आदेश दिया, तो ईरान ने तुरंत कह दिया कि वो उस समझौता ज्ञापन यानी MOU से बंधे नहीं रहेंगे, जिसे बड़ी मेहनत से साइन किया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई है, और इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। लोग अक्सर फील्ड मार्शल मुनीर के बारे में सुनते हैं, और जाहिर है मुनीर भी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोग शहबाज शरीफ के बारे में सुनते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सरकार के मुखिया के तौर पर वही चेहरा सामने आता है। लेकिन एक और शख्स है जिनका नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, जो उनके दामाद हैं, पाकिस्तान के 40 लाख शियाओं के प्रमुख माने जाते हैं। उन्हें ईरान की शिया बिरादरी में भी बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल है। इसी वजह से पाकिस्तान ने उन्हें कई बार ईरान भेजा है, और हाल ही में भी उन्हें वहां बातचीत के लिए भेजा गया था। वहां उन्होंने अपने ईरानी समकक्षों से मुलाकात की, जैसे IRGC के प्रमुख, संसद के स्पीकर। ये सब वही लोग हैं जिनके पास असली ताकत है। सुप्रीम लीडर से भी उनकी कुछ बातचीत हुई, लेकिन उतनी विस्तृत नहीं, क्योंकि सुप्रीम लीडर आमतौर पर इन्हीं लोगों की सलाह पर भरोसा करते हैं, और उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे बातचीत से बाहर न निकलें। असल में वो बाहर नहीं निकलने वाले हैं। वो इस पूरे मामले को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वो साफ तौर पर ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं या नहीं, हम नहीं जा रहे। हमने पहले भी इस चैनल पर बताया था कि ईरान जल्द ही एक जश्न मनाने वाला है, एक तरह की जीत का जश्न, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अमेरिका पर एक रणनीतिक जीत हासिल की है। ये जश्न उस अंतिम यात्रा के दौरान होगा जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जब वे अली खामेनेई, जो मौजूदा सर्वोच्च नेता के पिता हैं, को मशहद में शिया इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में से एक में दफनाएंगे। ये सब अगले कुछ दिनों में होने वाला है। वहां दुनिया भर से प्रतिनिधिमंडल आने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत की, तो सबसे अहम प्रतिनिधिमंडल वो होगा जो पाकिस्तान पहुंचेगा। प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, फील्ड मार्शल, जो वहां औपचारिक तौर पर अंतिम संस्कार, बातचीत वगैरह में शामिल होने और संवेदना प्रकट करने के लिए आएंगे। लेकिन असल में वे ईरान के नेतृत्व के साथ बहुत अहम बातचीत करने वाले हैं, और ये जानकारी मैं आपको एक बहुत मूल्यवान खबर के तौर पर दे रहा हूँ। इसका असर तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन ये पूरे क्षेत्र को भू राजनीतिक दृष्टि से बदल कर रख देगा। The entire region from a geopolitical point of view. Saudi Arabia, most importantly, सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, और पाकिस्तान के जरिए ईरान और पाकिस्तान दोनों से कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका यहाँ से निकल जाए, सचमुच यहाँ से निकल जाए।
और हम ये होते हुए देखेंगे अगले 6 से 9 महीनों में, सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि कतर में, ओमान में, और हमारी उम्मीद है कि ईरान में भी, यूएई में भी, शायद थोड़ा बाद में। अब दुनिया को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान और यूएई को एक दूसरे के करीब लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, जिनमें से कुछ गुप्त भी थीं, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं। हवाई यात्रा फिर से शुरू हो गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत अहम बात है कि ईरान और यूएई के बीच अब हवाई यात्रा शुरू होने जा रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दुबई के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी। दुबई बिना हवाई यात्रा के कुछ भी नहीं है। अगर वहां आने वाले लोग ना हों, तो वो बस रेगिस्तान के बीच एक प्लास्टिक शहर बनकर रह जाता है। तो ये तथ्य कि यूएई और ईरान एक साथ आ रहे हैं और पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, ये बेहद अहम है, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की और शायद दुनिया की भू राजनीति का स्वरूप फिर से बदलने वाला है। अब ट्रंप जो भी करें, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वो गुस्सा दिखा सकते हैं, कुछ हमले कर सकते हैं, लेकिन वो बस हल्के झटके हैं जो आने वाले नतीजे को नहीं बदल पाएंगे। लैरी, मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, तो आयतुल्लाह खामेनी यानी दिवंगत आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्में दरअसल एक तरह का ध्यान भटकाने वाला कारक बनेंगी। जैसा कि मुझे समझ में आया है, ये समारोह और धार्मिक अनुष्ठान 2 जुलाई के आसपास शुरू होंगे, यानी गुरुवार से, और कम से कम 1 हफ्ते तक चलेंगे, शायद 9 या 11 जुलाई तक। अब ये क्यों अहम है? क्योंकि इसी दौरान ईरान अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत या वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहेगा। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में अपने प्रोटोकॉल्स को लागू करता रहेगा, और जब ये सख्ती जारी रहेगी तो इसके साथ ये खतरा भी रहेगा कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमले करने की कोशिश कर सकता है। और ये बात भी याद रखिए कि अमेरिका और इजराइल की मोसाद दोनों ही ईरान की सीमा पुलिस और सीमा बलों पर कुर्द हमलों को समर्थन देने और भड़काने का काम जारी रखेंगे। तो मेरा मानना है कि पश्चिमी देश अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि आयतुल्लाह के अंतिम संस्कार का माहौल शांतिपूर्ण या स्थिर न रहे। बाहर से उसे बाधित करने की कोशिशें होंगी। अब 2 और मुद्दे हैं जो आगे चलकर अहम हो सकते हैं। पहला, ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब हूती विद्रोहियों से टकराव की तैयारी कर रहा है। मीडिया में यही तस्वीर दिखाई जा रही है। असल बात यह है कि यह मामला ज्यादा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टकराव का है, खासकर यमन में उन गुटों को लेकर जिन्हें अमीरात समर्थन देता है बनाम वो गुट जिन्हें सऊदी समर्थन देते हैं। तो यमन की सीमा पर सऊदी सेनाओं का जुटना असल में अमीरात से जुड़ा हुआ है, हूथियों से कम। अब ये भी सही है कि हूथियों ने अपनी संभावित जवाबी ताकत को सक्रिय कर दिया है, यानी उन्होंने अपने रिजर्व बलों को बुला लिया है। इसलिए यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है और यमन में गृह युद्ध दोबारा भड़क सकता है। लेकिन अगर ये मामला सिर्फ अमीरात और सऊदी अरब के बीच सीमित रहता है तो शांति प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर वाकई इससे सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ता है तो हाँ, ये पाकिस्तान के लिए एक सीधी चुनौती होगी जिसे वो संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा होने पर पूरा एमओयू और शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। तो हालात काफी अस्थिर हैं। कल ईरान में सुप्रीम काउंसिल की जो कार्रवाई हुई उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और नहीं हल्के में लिया जा सकता है। उस धार्मिक परिषद के 2/3 से ज्यादा सदस्यों ने अरकची और गालिबाफ को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि एमओयू की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए, और अगर अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार किया तो ईरानी अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने चाहिए, जिसमें इस प्रक्रिया से बाहर निकलना भी शामिल है।
तो ये एक और अहम पहलू है जो अब इस पूरे फर्श में जुड़ है। आप चुप हो गए थे। क्या कहा आपने? आप बिल्कुल शांत हो गए थे। मैंने सोचा है आपने हिफ माइट यू थिंग। In Hyde, Sturgill get in a carry von Greece. ठीक है लारी, ये बहुत ही अहम विश्लेषण है। अब मैं इसमें अपनी तरफ से जो जोड़ना चाहता हूँ वो मेरे नजरिए, मेरे संपर्कों और उस जानकारी पर आधारित है जो आमतौर पर सामने नहीं आती। मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान इस पूरे हालात के बीच असाधारण रूप से सक्रिय रहा है। दुनिया जब इस अफरा तफरी को देख रही है उस दौरान खास तौर पर मोसुल नकवी, जिनका बहुत सम्मान किया जाता है, और साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, दोनों ही सऊदी और ईरानी नेतृत्व से लगातार संपर्क में रहे हैं। जब तक अली खामेनी को मशहद में दफन नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको पूरे भरोसे से ये कह सकता हूँ, जो कुछ भी मुझे पता है उसके आधार पर। मैं खुदा नहीं हूँ, न कोई ज्योतिषी हूँ और न ही भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, वो लोग ऐसा कुछ करने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि सऊदी अरब ट्रंप से बहुत बहुत नाराज है। MBS ट्रंप से नाराज है और वो चाहता है कि ट्रंप सऊदी अरब से बाहर हो जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब का हाथ थामे हुए है और वही इस बदलाव को अंजाम देगा। ये होने वाला है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो फिर से सुलझा ली जाएगी। ये बदलाव तय है, और जब ऐसा होगा तो सऊदी अरब, जो आर्थिक रूप से उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो कतर पर असर डालेगा, ओमान पर असर डालेगा, UAE पर भी असर डालेगा और पाकिस्तान ताकत के रूप में उभरेगा। दोनों अब एक रक्षा समझौते में गहराई से जुड़े हुए हैं, जिसमें नारो जैसी एक धारा है जो लगातार और मजबूत होती जा रही है। उस हिस्से में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, एक भू राजनीतिक फेरबदल जो निश्चित तौर पर बिना किसी शक के हम पर, यानी पश्चिमी देशों पर असर डालेगा। अब अगर हम इसे आर्थिक नजरिए से देखें तो इसका असर बहुत बड़ा है। मैं इस बारे में थोड़ा जानता हूं क्योंकि मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने ब्रेटन वुड्स जैसे समझौतों का हिस्सा रहा हूं। अमेरिका को अपने $40 ट्रिलियन के कर्ज से निपटने में बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। और अगर ईरान उस क्षेत्र में एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरता है और उसके साथ अजरबैजान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्य एशियाई देश जुड़ते हैं, तो वो इलाका दुनिया का बेहद अहम हिस्सा बन जाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि चीन उसके पीछे खड़ा है। दुनिया 5 साल बाद वैसी नहीं होगी जैसी आज है या जैसी पिछले 40 सालों से रही है। अब मैं इसे वापस तुम्हारी ओर लाता हूं, लैरी। मेरा मानना है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा इसका वैश्विक आर्थिक असर है। शुरुआत के लिए देखें तो हम अब 5वें महीने में पहुंच चुके हैं और जलडमरू मध्य लगभग बंद है, या फिर वहां से बहुत सीमित यातायात हो रहा है। ज्यादातर ध्यान तेल पर रहा है और ये वाजिब भी है, क्योंकि दुनिया की कुल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा प्रभावित हुआ है। कई तरह की खबरें चल रही हैं कि तेल की तस्करी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सोचने वाले लोग भ्रम में हैं, क्योंकि खाड़ी के कई अरब देशों में असल में तेल के कुएं खुद ही क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसलिए ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि बस एक स्विच इन कर दिया जाए और तेल फिर से बहने लगे। लेकिन जब आप उन कमियों को देखते हैं जो हीलियम की कमी से पैदा हुई, तो मैंने ऐसे अनुमान देखे हैं जो बताते हैं कि वैश्विक आपूर्ति का करीब 33 से 44% हिस्सा प्रभावित हुआ है। नतीजा ये हुआ कि हीलियम की कीमत 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई, और हीलियम कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में एक बेहद अहम घटक है। तो सीधी बात यह है कि अगर हीलियम की आपूर्ति घटेगी तो कंप्यूटर चिप्स की आपूर्ति भी घटेगी,
और जब आपूर्ति घटती है तो कीमतें बढ़ती हैं, घटती नहीं। हमने ये पहले ही देख लिया है। एप्पल ने घोषणा की है कि उसका टॉप लाइन आईफोन यानी एप्पल 17 मैक्स प्रो अब सामान्य से करीब $200 ज़्यादा महंगा होगा और टॉप लाइन मैकबुक प्रो की कीमत में भी $300 की बढ़ोतरी होगी। ये सब सिर्फ उस हीलियम की लागत की वजह से है। That's just from the cost of that helium. Similar effects with sulfur, and sulfur is used. सल्फर के साथ भी यही असर देखने को मिला। सल्फर का इस्तेमाल खाद बनाने में होता है, लेकिन ये धातु प्रसंस्करण में भी काम आता है और फिर से इसकी लागत दोगुनी हो गई। यही हाल यूरिया का भी है। तो जो हम देख रहे हैं वो एक वैश्विक आर्थिक झटका है, बढ़ती महंगाई का। ये महंगाई इसलिए है क्योंकि ये जरूरी वस्तुएं अभी मिल रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा दाम पर, और ये ऊंचा दाम ज्यादातर कमी की वजह से है, न कि मांग बढ़ने की वजह से। लेकिन जब आप कम आपूर्ति और बराबर या बढ़ती मांग को मिलाते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है जो पूरी दुनिया में महंगाई का झटका दे सकती है। और जहां तक अमेरिका की बात है, वहां हालात ऐसे हैं कि डीजल और जेट ईंधन के बीच चुनाव की बात आए तो देश सचमुच लगभग खाली टैंक पर चल रहा है। When it comes to the choice between diesel fuel and jet fuel, the odds are high that the United States may face a real. संभावना बहुत ज्यादा है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में अमेरिका को उस मोर्चे पर एक असली संकट का सामना करना पड़ सकता है। यही वजहों में से एक थी कि ट्रंप चाहते थे कि एमओयू के तहत होर्मुज की खाड़ी को जितनी जल्दी हो सके फिर से खोला जाए। लेकिन ईरान जो कर रहा है वो ये है कि तेल अमेरिका भेजने के बजाय अब चीन और एशिया के दूसरे देशों जैसे सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और भारत को भेज रहा है, और डॉलर में बेचने के बजाय वो अब चीनी मुद्रा में भुगतान स्वीकार कर रहा है। तो जो हम देख रहे हैं वो है एक नए विश्व व्यवस्था का उभरना, एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जिसके साथ फारस की खाड़ी में एक नई राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था भी आकार ले रही है। And military order in the Persian Gulf. I could not have said it better, Larry. I could not have इससे said it बेहतर better. मैं खुद And नहीं कह सकता था, लैरी। I just want to add one thing. सच में That इससे China बेहतर is नहीं कह standing सकता था। behind that, और मैं बस एक बात जोड़ना चाहता हूं कि चीन इसके पीछे पूरी तरह खड़ा है। वो हर तरह का समर्थन दे रहा है ताकि सबको पता चले कि ये सिर्फ राजनीतिक कदमों से नहीं जुड़ा है जिन्हें कुछ लोग देख पा रहे हैं और कुछ नहीं, बल्कि इसके पीछे चीन की व्यावसायिक ताकत, औद्योगिक ताकत और सैन्य ताकत भी है। मेरा मतलब ये नहीं कि वो कोई प्रभुत्व जमाने वाला देश बनना चाहता है या अमेरिका की जगह लेकर नया प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, बल्कि वो अमेरिका की जगह एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभर रहा है, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में, और ये वो पहले ही कर चुका है। मुझे लगता है कि हमने आज बहुत कुछ कवर किया है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस सोमवार के सत्र के लिए। अब ये हमारे ट्रांजिशन प्रोटोकॉल का एक नियमित हिस्सा बन गया है। कल पेपे एस्कोबार इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बुधवार को पेपे, लैरी और मैं तीनों मिलकर एक संयुक्त सत्र करेंगे। आपके समर्थन के लिए हम दिल से आभारी हैं। अभी मुझे बताया गया है कि हमारा पिछला संयुक्त सत्र दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये हमारे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि इस तरह की खबरों में लोगों की दिलचस्पी है। प्रेस जाने से पहले बस उस पर लाइक्स और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। डॉजी के चेहरे से मुस्कान लिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे दोस्त, शुक्रिया। मैं अब रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा हूँ।